Hello friends, what's up? I hope you all are good. आज के इंफॉर्मेशन एज की दुनिया में इंफॉर्मेशन को एज अ करेंसी समझा जाता है। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो यह ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। सो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने वाले हैं। बीआईएस एक रिसोर्स है जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटिंग बिजनेस पीपल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीआईएस इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस फंक्शन एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल को एक साथ लाता है जो टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन के लिए यूजफुल होता है और इन टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटनेस की ओर कंट्रीब्यूट करता है। आइए इसके एडवांटेजेस को समझते हैं। Have large capacity for storage of information and also provide faster access, provide support for decision making, grant a competitive edge, ensure fast and accurate processing of data and make it available as and when required, offer faster communication and exchange of information across the value chain and reduce information redundancy। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट है स्ट्रेटजिक लेवल सिस्टम, सेकंड है मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, थर्ड है नॉलेज लेवल सिस्टम एंड लास्ट है ऑपरेशनल लेवल सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक लेवल सिस्टम। फॉर स्ट्रेटजिक मैनेजर टू ट्रैक एंड डील विद स्ट्रेटजिक इश्यूज असिस्टिंग लार्ज रेंज प्लानिंग। A principal area is tracking changes in the external conditions and matching these with the internal condition of the organization। आइए समझते हैं executive information system। An EIS is the nature of information system used by executives to access and administer the data they intend to make informed business decisions। EIS is able to link data from various sources, both internal and external, to provide the amount and kind of इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव फाइंड यूजफुल। आइए नेक्स्ट समझते हैं मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। यह मिडिल मैनेजमेंट के मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। सम ऑफ दीज सिस्टम डील्स विद प्रिडिक्शन और व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन। आइए समझते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS refers to the data, equipment and computer programs that are used to develop information for managerial use. Example: airline reservation, bank operation and logistic management. The aim of management information system is meeting the information needs of managers, particularly with regard to the current and past operation of the enterprises. MIS is an integrated application that serves all departments within an enterprise, evolving out of the packaged software rather than proprietary software in black and white by or one customer। आइए समझते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक DSS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। DSS एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, ऑपरेशन और स्ट्रेटजिक लेवल पर सर्व करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, which may be rapidly changing and not easily specified in advance। DSS can be either fully computerized or manual, or combination of both। The limitations of DSS are cause of great confusion, misperception, and even inaccurate analysis, not designed to eliminate bad decisions। Ultimate burden of responsibility lies with the managers। DSS have four basic components। The first one is user, usually a manager. Second है planning language, general purpose and for special purpose. Third है model base, the brain of the system for computation. And last है database, houses database
of routine and non-routine for external and internal sources. आइए समझते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक आईटी सिस्टम होता है जो नॉलेज को स्टोर और रिट्राइव करता है, या कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है, या नॉलेज को लोकेट करता है, या सम अदर वेज में नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस को इनहेंस करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टैसिट नॉलेज। आइए समझते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज आर्टिकुलेटेड होता है और स्पोकन वर्ड्स, रिटन मटेरियल और कंप्लाइंट डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजरल मैनुअल्स। नेक्स्ट है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज अनआर्टिकुलेटेड होता है और इंट्यूशन, पर्सपेक्टिव, बिलीफ, वैल्यूज जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेस पर फॉर्म करता है को रिप्रेजेंट करता है। It resides in a few, often in just one person, and has not been captured by the organization or made available to others. Example: hand-on skills, special know-how, and employees experience. आइए समझते हैं difference between information and knowledge. Information is know what, and knowledge is know how. Information is what is, and knowledge is what were. Information is piecemeal, fragmented and particular, and knowledge is structured, coherent and often universal. Information is timely, transitory and perhaps even short-lived, and knowledge is of enduring significance. Information is flow of message, and knowledge is a stop. Information is acquired by being told, and knowledge can be acquired by thinking. The examples of information is my account balance has a balance of 2000, and knowledge is if my balance falls below 2000 I shall have to pay minimum balance charge. आइए आज के इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। A type of information system that collects, stores, modifies and retrieves the day-to-day data transaction of an enterprise. आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग। टीपीएस ट्रांजैक्शन को इमीडिएट प्रोसेस करने के लिए डिजाइन होता है to make confident that transaction data is available to other users or processes that entail. नेक्स्ट है इक्विवेलेंस। ट्रांजैक्शन एवरी टाइम सिमिलर फॉर्मेट में प्रोसेस्ड होता है जिससे कि फुल इफेक्टिवनेस इंश्योर हो सके। एंड नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। यह इंश्योर करता है कि पीपल जो सिस्टम को यूज करने के लिए ऑथराइज नहीं होते हैं वो ट्रांजैक्शन को ट्रांसफॉर्म या इन्फ्लुएंस करने के लिए परमिसेबल न हो। एंड लास्ट है ट्रस्टवर्दीनेस। एक टीपीएस सिस्टम सेवरल चेक्स को कंडक्ट करता है इस बात को सर्टेन करने के लिए कि डाटा इंटीग्रिटी इज प्रिजर्व्ड। आइए समझते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्वालिफायर्स मतलब एसिड टेस्ट। फर्स्ट है एटॉमिसिटी। यह इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन अपने इंटायरिटी में प्लेस हो। एग्जांपल डेबिट एंड क्रेडिट आर बोथ द अकाउंट्स। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। टीपीएस सिस्टम सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स में एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट है आइसोलेशन। Transaction must appear to take place in sequential. Example: transaction are take place in simultaneously, such as debit and credit of transaction at the same time. And last है durability. एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो वह अनडन न हो पाए। इस बात को इंश्योर करने के लिए एक लॉक क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सारी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली डॉक्यूमेंट किया जा सके। आइए समझते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन इंटायर टूल्स एंड मेथड को रिफर करता है जो ऑफिस एक्टिविटीज के लिए अप्लाइड हो, which formulate it achievable to practice written, visual and sound data in a computer aided mode. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज को अमेलगमेशन है जो कम्युनिकेशन के प्रोग्रेस और ऑगमेंटेड एफिशिएंसी को स्मूथली करने के लिए यूज किया जाता है।
Office automation refers to the use of computer and software to digitally generate, collect, store, manipulate and relay office information needed for accomplishing basic tasks and goals. यह फॉलोइंग एक्टिविटीज को कंप्राइज किए होता है: एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, हैंडलिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड मीटिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल। सो यह द कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।